We will discuss today is significance tests. And significance tests, they can be defined in a number of ways, and one of the definition of significance test is these tests are actually the formal procedures for comparing the observed results with the claim, uh, for comparing the observed results. ठीक है, अब क्या करते हैं कि whenever you are performing some sort of analysis and you get the set of data, and when this observed data will be compared with the claim, this will be done through the significant tests. Now, what is claim? Claim, in simple words, you can say it is a hypothesis, or it is a statement made about the, you can say, data. And in case of significant tests, the results are normally expressed as a probability, where probability, it tells you information about the agreement between the data and claim. ये आपको तब क्लियर होगा when we'll do the example, and one of the example we are going to discuss is the distribution of IQ scores. Now, consider an example in which students, or which some persons, they were selected and their IQ level were tested, and this is a normal distribution curve which is showing the distribution of the IQ scores. The data which was obtained, it was plotted, and this showed that the mean value of population was found out to be 100. Now, the sample which is selected, for sample also there was determination of mean, and there's a possibility that the sample mean, it may be equal to population mean. Another probability is that the sample mean may not be equal to the population mean. Here it is x bar. Okay, now what is the why statistical tests are needed? Statistical tests are needed to make a claim. ठीक है, in order to give a statement about, you can say, data, the statistical tests are needed. And similarly, significance tests, they are done to check the strength of evidence against null hypothesis. Okay, ठीक है जी, how strong evidence you have collected for supporting your alternative hypothesis and this goes against null hypothesis, ये उसके लिए किए जाते हैं. ये चीज़ें आपको अभी इससे क्लियर हो जाएंगी. देर आर टू टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस आपको पता होता है कि एक प्रपोजल आप कह सकते हैं होता है. One type of hypothesis is known as null hypothesis, which is indicated as H naught. And why it is known as null hypothesis? Because this is based on no difference hypothesis. Or this hypothesis says that the difference between, let's suppose we say, sample and population is not, you can say, significant. ठीक है. Another type of hypothesis is known as alternative hypothesis, and this is against the null hypothesis. Now, according to this hypothesis, there is a significant difference between the two parameters. ठीक है, between the observed data and claim. There is significant difference between the observed data and claim. This is said in alternative hypothesis. So before doing the significance test, what will be the first step? First of all, a statement or hypothesis will be given. A statement will be made. A hypothesis will be given, and starting from the null hypothesis. ठीक है. Okay. Now, if we look at the null hypothesis, it tells you. Okay, this is alternative hypothesis, and alternative hypothesis is actually defined as a claim that what researchers are trying to prove is correct. ठीक है, since it is opposite to the null hypothesis, तो ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की ज़रूरी होता है कि एक रिसर्च का रिजल्ट आता है. ठीक है, अब लेट्स सपोज आप किसी एक तरीके से आपने एक नया तरीका एनालिटिकल केमिस्ट्री में कोई प्रपोज किया किसी भी एनालिसिस के लिए. ठीक है, और जो आपका नल हाइपोथेसिस है वो कहता है कि देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द न्यू मेथड एंड द मेथड विच इज़ ऑलरेडी इन यूज़. लेकिन आपका जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो कहता है कि द मेथड विच इज़ प्रपोज्ड इज़ बेटर देन द मेथड विच इज़ ऑलरेडी इन यूज़. तो ये इस यानी साइंटिस्ट क्या चीज़ प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं इन दिस एग्जाम्पल, पर्टिकुलर एग्जाम्पल, के द न्यू मेथड, द न्यू प्रपोज मेथड इज़ बेटर देन द ओल्ड वन. तो ये आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो गया. अब इस एग्जाम्पल में चूँकि हमने IQ वाली एग्जाम्पल कंसिडर की थी, तो इसमें हम क्या कंसिडर कर रहे हैं कि सैम्पल मीन IQ इज़ नॉट डिफरेंट देन 100. मीन्स के पॉपुलेशन मीन भी 100 है और आपके पास सैम्पल मीन अगर हम कैलकुलेट करें तो वो भी आपके पास 100 आना चाहिए.
यानी कि सैम्पल मीन एंड पॉपुलेशन मीन में डिफरेंस नहीं है. दिस इज़ द स्टेटमेंट ऑफ नल हाइपोथेसिस. ठीक है. और उसके अपोजिट कौन सा हाइपोथेसिस होता है? हाइपोथेसिस अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. It can be further divided into two types. It is called a two-sided alternative hypothesis or one-sided alternative hypothesis. Two-sided alternative hypothesis means that the value of sample, it may be sample mean, it may be greater than population of population mean, and it may be lesser than mean of population. ठीक है. यानी कि आप इसको यूँ कंसिडर करें कि अगर आपके पास 100 आपका पॉपुलेशन मीन है, एंड इफ़ यू आर हैविंग द चांसेस ऑफ हैविंग सैम्पल मीन either on this side means greater than population mean, or on this side. On both sides, if there are chances of occurrence of sample mean are there, then this type of hypothesis will be known as two-sided hypothesis, alternative hypothesis. And then in this case, in two-sided hypothesis, what happens? IQ level will not be equal to 100. It will not be equal to 100. It may be greater than 100, it may be lesser than 100, and the difference between sample mean and population mean will not be equal to 0. ठीक है. IQ minus 100, दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0. मतलब अगर आप पॉपुलेशन का IQ स्कोर देखते हैं और अगर आपके पास जो सैम्पल का है, तो ये आपके पॉपुलेशन का और आपके सैम्पल का जो है, दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0. ओके. आपके पास वन साइडेड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में क्या होता है कि व्हेन IQ सैम्पल मीन इज़ ग्रेटर देन 100, यानी आप पॉपुलेशन मीन के जस्ट वन साइड पे ही आपके पास जो होता है वो डेटा होगा. तो ऐसे केस में क्या होगा? लेट्स सपोज व्हेन द पॉपुलेशन मीन इज़ 100 एंड इफ़ द सैम्पल मीन्स इट कम्स आउट टू बी ग्रेटर देन 100, तो आपके पास ये वन साइडेड होगा, यानी हम नेगेटिव साइड पे नहीं जाएंगे. और या फिर आप कह सकते हैं कि IQ ऑफ द सैम्पल माइनस 100 इज़ ग्रेटर देन 0. ग्रेटर देन 0 किस केस में आपके पास होगा? यानी आपके पास जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस बिटवीन द IQ ऑफ सैम्पल एंड आपके IQ ऑफ पॉपुलेशन, इट इज़ नॉट इक्वल टू 0. 0 तो आप लोगों ने 0 तो आप तब लेंगे ना जब आपके पास इस केस में हम कहते हैं कि व्हेन वी आर कंसिडरिंग द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, तो हम यहाँ पे 0 ले लेते हैं इन केस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन. तो it should be greater than 0 means this should be lying on this side. और ये आपने ये माइंड में रखनी है, वन साइडेड आपके पास ये बहुत डायरेक्शंस में हो सकता है. दिस कैन बी इन दिस डायरेक्शन एज वेल एज इन दिस डायरेक्शन ऑल्सो. ठीक है. तो ये दोनों केसेस में पॉसिबल है. एंड आफ्टर दैट, गोल ऑफ द सिग्निफिकेंस टेस्ट इज़ टू गिव एविडेंस टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस. अब ये जो हम सिग्निफिकेंस टेस्ट जो है कंडक्ट करते किस लिए हैं? क्योंकि इसके रिज़ल्ट में जो हमारे पास डेटा आएगा, उसकी बेसिस पे हम लॉजिकली स्टैटिस्टिकल अप्रोच को यूज़ करते हुए अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट या एक्सेप्ट कर सकते हैं. इफ़ एविडेंस इज स्ट्रॉन्ग, ठीक है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस विल बी एक्सेप्टेड. जस्ट आप सारा कंक्लूजन ड्रॉ करने के बाद अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस आएगा, तभी आप लोग नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकते हैं. और इसी एग्जांपल में अगर आप कंसिडर कर लें, वन ऑफ द टेस्ट विच इज़ यूज टू रिजेक्ट द हाइपोथेसिस और एक्सेप्ट द हाइपोथेसिस इज जी स्कोर. ठीक है. इट्स स्टैटिस्टिक में टर्म होती है यूज जी स्कोर. व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर फाइंडिंग द जी स्कोर? हियर इज़ द डिफरेंस बिटवीन population mean and sample mean divided by standard deviation of population, which is further divided by number of you can say measurements made, and आपके पास sample size आप उसको कह सकते हैं. ओके. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 108 represents the sample mean. This is population mean which is divided by standard deviation. This data is given. Standard deviation, now look at this data is given. IQ of population is 100, standard deviation is 16, x bar is 108, and number of observations are also 16. So on the basis of this data we will get the z score that is equal to 2. ठीक है. अब 2 आपके पास z score आता है. Now if we again consider this curve, now you can see that here it is 0. ठीक है.
and this is +1 standard deviation, -1 standard deviation, -2 and +2 standard deviation. So what z score we got 2. ठीक है, तो अब आपका z स्कोर है वो 2. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका पॉपुलेशन मीन यहाँ लाई कर रहा है तो आपका सैम्पल मीन जो है वो यहाँ पे लाई करेगा. ठीक है, सो सैम्पल मीन इज लाइंग 2 स्टैंडर्ड डेविएशन अवे फ्रॉम द पॉपुलेशन मीन. क्लास एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि फॉर जी टेस्ट the number of measurements made or the number of sample size should be more than 30. ये जस्ट सिंप्लीफिकेशन के लिए कैलकुलेशन आपको इजीली समझ आ जाएंगे. 16 का फिगर यहाँ पे यूज़ किया गया है. ठीक है, तो एक और चीज़ है जी, सैम्पल मीन इज 2 स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम पॉपुलेशन मीन. आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग दिस स्कोर. Means how much probability of finding the score of 108 is there. ठीक है, ओके. नेक्स्ट आपके पास है जी प्रोबेबिलिटी. हमने भी जैसे डिस्कस किया प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग स्कोर्स. ओके, अब हम ये देखेंगे हाउ मच प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग स्कोर्स लेस देन जी इज़ पॉसिबल. देखेंगे इसको आप क्लियर, अब ज़रा थोड़ा सा थॉरली देखें. अगर आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इस तरह का हो ना, तो अब सैम्पल मीन आपका यहाँ पॉपुलेशन मीन इधर आपका मिड में लाई करता है. आपने देखा था कि आपका जो जी स्कोर आपके पास आया है दैट वाज अबाउट 2 स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम यूर पॉपुलेशन मीन. तकरीबन यहाँ पर आपका आया है. तो इसके बाद आप देखेंगे कि आपके पास कितने परसेंट चांसेस हैं कि आपके पास जो जी की वैल्यू है, आपके पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग स्कोर्स लेस देन जी. ठीक है, आपके पास कितनी प्रोबेबिलिटी कि आपके पास जो स्कोर्स हैं वो लेस देन जी आए, आपके पास स्कोर्स आए. ओके, अब आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग स्कोर मोर देन जी. अब आपके पास जी यहाँ पे है, तो आपके पास कितनी प्रोबेबिलिटी है कि आपके पास स्कोर जो है यू आर गेटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जी मोर देन गेटिंग स्कोर मोर देन जी. और ये जो होती है ना, स्पेशली ये जो डार्क शेडेड रीजन है, इसको हम पी वैल्यू बोलते हैं स्टेटिस्टिक्स में. और ये आपके पास जो है ये देखिए इसको कैसे मेंशन किया हुआ. दिस इज शोन एज एरिया टू द लेफ्ट ऑफ जी वैल्यू तकरीबन आपकी यहाँ लाई करती है. तो इसके लेफ्ट हैंड साइड पे जो एरिया है ये जो आपको लाइट शेडेड नज़र आता है. ठीक है, और ये जो एरिया लाई करता है इसके राइट हैंड साइड पे डार्क शेडेड. अब आपने ये देखना है कि जो राइट साइड पे वैल्यूज़ लाई कर रही हैं, स्कोर लाई कर रहा है, वो आपको कंक्लूजन मेकिंग में, डिसीजन मेकिंग में, रिजेक्शन या एक्सेप्टेंस में ही आपको हेल्प करेगा. एंड दिस इज़ नोन एज पी वैल्यू. ठीक है, अब यहाँ पे हम फर्दर देख लेते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग स्कोर मोर देन जी. अब आपके पास कितने परसेंट प्रोबेबिलिटी है कि यू कैन गेट द स्कोर्स मोर देन जी, तो ये आप अब देखेंगे. ठीक है, और इफ़ द वैल्यू ऑफ पी इज स्मॉल, अगर ये आपके पास वैल्यू, ये जो शेडेड रीजन आपको नज़र आ रहा है, इसकी वैल्यू जो है, प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या हो, स्मॉल हो, देयर इज स्ट्रॉन्ग एविडेंस अगेंस्ट एच नॉट. ये आपने याद रखना है. जितनी इसकी आपके पास लेस वैल्यू आती है तो उतना ही आपके हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस की एक्सेप्टेंस के चांसेस जो हैं वो कम होते जाते हैं. नाउ प्रोबेबिलिटी आपको क्या बताती है, व्हाट परसेंट चांसेस एग्जिस्ट ऑफ गेटिंग दिस स्पेसिफिक मीन. ठीक है, आपको जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू बताएगी कि आपके पास जो 108 सैम्पल मीन के अकरेंस के चांसेस कितने परसेंट हैं. ओके, इफ़ यू आर हैविंग लार्जर जी वैल्यू, ठीक है, तो आपके पास स्मॉलर पी वैल्यू होगी. अब देखें यहाँ पे अगर आप मीन कंसिडर करते हैं, यहाँ पे मीन कंसिडर करें, जितना आपके पास जी की वैल्यू लार्ज होगी, जितना आपके जी की वैल्यू क्या है, इफ दिस इज लाइंग टूवर्ड्स हायर साइड्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, जितना जी की वैल्यू लार्ज होगी तो इतना आपके पास ये टेल कम होती जाएगी ना. ये टेल जो आपको प्रोबेबिलिटी के बारे में बता रही है, तो उतना पी की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, स्मॉल होगी. जितना पी की वैल्यू स्मॉल होगी उतना आपका नल हाइपोथेसिस जो है वो फॉल्स ज़्यादा उसके होने के चांसेस होते हैं. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ हाउ टू फाइंड प्रोबेबिलिटी. हाउ कैन वी फाइंड प्रोबेबिलिटी. उसके लिए आप क्या करेंगे, ये आपने पहले तो ये कंसिडर करना है कि जो पूरा एरिया होता है ना, एरिया बिलो द कर्व इज़ कंसिडर टू बी 1. उस पूरे 1 में से आपके पास ये जो एरिया है, एरिया टू द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है,
ये आपके पास एक जी टेबल होता है, उसमें ये गिवन होगा कि आपका एरिया टू द लेफ्ट हैंड साइड इन दिस केस विल बी 0.9772, यानी उसमें ये मेंशन होगा कि अगर आपके पास जी स्कोर 2 होगा तो ये स्कोर आपके पास कितना होगा। तो जब आपके पास जी की वैल्यू 2 है तो आपके पास ये एरिया कितना आएगा 0.9772। तो आप इसको 1 से जब माइनस करेंगे तो आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 0.0228। तो आपके पास कितनी प्रोबेबिलिटी आ रही है 0.0228। अगर आप इसको परसेंटेज के हिसाब से देखें तो हम कह सकते हैं कि देयर आर 2% चांसेस ऑफ रिकॉर्डिंग सैम्पल मीन ऑफ 108, यानी कि अब आपके पास कितने परसेंट चांसेस हैं कि आपके पास मीन जो है वो 108 हो सकता है। तो आपका जस्ट 2% चांसेस, इट्स वेरी स्मॉल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास 2% चांसेस, देयर आर 2% चांसेस दैट द नल हाइपोथेसिस इज करेक्ट, क्योंकि नल हाइपोथेसिस ने ये कहा था कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन 108 एंड द व्हाट वाज द सेकंड वैल्यू 100, नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। लेकिन यहाँ आपको पता चल रहा है कि सिर्फ आपका 2% जो सैम्पल मीन है, उस 2% सैम्पल मीन के ये चांसेस हैं कि वो 108 पे लाई करे। सो इफ पी वैल्यू इज, अच्छा लास्ट में क्या करेंगे, वंस यू हैव फाउंड द प्रोबेबिलिटी, इफ पी वैल्यू इज ग्रेटर देन अल्फा, अब अल्फा आपके पास ये टेबुलेटेड वैल्यू होती है, अगर ये अल्फा से ज़्यादा हो तो आप क्या करेंगे, यू विल एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस। एंड व्हाट इज अल्फा नाउ, दिस इज सपोज टू बी कट ऑफ वैल्यू। कट ऑफ वैल्यू आप जैसे आप एक लिमिट सेलेक्ट कर लेते हैं कि, और इसको हम लिमिट जो सेलेक्ट करते हैं उसमें हम क्या कहते हैं कि दिस लिमिट एक्चुअली अकाउंट्स फॉर द अमाउंट ऑफ एक्सेप्टेबल एरर, कि ये जो कुछ परसेंट असाइन कर दी जाती है कि ये एरर दिस में बी एट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स एरर। और नॉर्मली ये जो सिग्निफिकेंस लेवल सेलेक्ट किया जाता है मतलब 5% कट ऑफ लिमिट सेलेक्ट कर ली जाती है, और उसको हम 0.05 सिग्निफिकेंस लेवल बोलते हैं। तो अगर आपके पास वैल्यू का आप टैली करें 0.0228, देन दिस विल बी लेसर देन 0.005। तो अगर आपकी वैल्यू लेसर होगी तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर आपकी वैल्यू जो होती है प्रोबेबिलिटी इट इज़ ग्रेटर देन अल्फा वैल्यू, तो आपके पास जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो जाएगा। इफ दिस वैल्यू इज लेसर देन 0.05, ठीक है, देन दिस इज रिजेक्टेड, आपका नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड, अल्टरनेटिव एक्सेप्टेड। तो कंक्लूजन आपके पास क्या है, इट मींस दैट देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन एंड द ओके। इसी जी स्कोर को फर्दर क्लियर करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक पर्टिकुलर research were carried out on the rats, and it was seen that if they are injected with a drug dose, and what will be the effect on their response time. It was seen that in the absence of drug, the response time, the mean response time for the rats were 1.2 second, not 1.2. This is 1.2 second. But when they were injected with the dose of drug, their response time was 1.05 seconds. Now, scientists were actually trying to prove that the drug has affected the response time of the rats. And what will be the null hypothesis? Null hypothesis, since it is known as no difference hypothesis, so according to this hypothesis, there will be no difference in the response time of rats in the absence and in the presence of drug. What can be the alternative hypothesis? Alternative hypothesis says that when the rats were injected with the drug, the response time was changed. तो ये आपका अल्टरनेटिव है। प्रूव अब हमने ये करना है, अब हमने ये देखना है कि हमारा जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है ये एक्सेप्टेबल है या नहीं है। उसके लिए सबसे पहले आप ये देखेंगे कि जो आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में अगर हम मीन की टर्म्स में बात करें, सो वी आर एक्चुअली गोइंग टू सी वेदर द मीन ऑफ पॉपुलेशन, or you can say that mean without drug is this similar to the mean of the samples in which drugs have been injected. So alternative hypothesis is based on the fact that mean of the sample and population with and without drugs will not be the same. They should not be equal to 1.2 second. 1.2 second तो ड्रग की एब्सेंस में था ना, तो जो सैम्पल रेट्स का सिलेक्ट किया गया जिनको इंजेक्ट किया गया ड्रग के साथ, उनका जो मीन है, मीन रिस्पॉन्स टाइम है, दैट कैन नॉट बी इक्वल टू 1.2 सेकेंड्स। नाउ हाउ टू डिसाइड वेदर टू एक्सेप्ट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, इसके लिए जो फर्स्ट असम्पशन हमें करना होगा
first assumption is the null first assumption is based on the fact that the null hypothesis is true. पहले हम ये assume करते हैं कि null hypothesis क्या है, it is true. Okay, from this null, when we assume the null hypothesis is true, and when we find the z-score, then from the z-score and from the p-value we will see that how much probability of getting this sample mean is there. Sample कितना sample mean हमारे पास 1.05 सेकेंड की occurrence के कितने chances हैं. So you have to see the data first. ये आपके पास data क्या क्या given है जी. This is standard deviation of sample and this is given as standard deviation of population divided by number of rates selected. अब आपके पास standard deviation which is given in the numerical is 0.5 and under root of 100 rates select किए तो under root we will take the under root of 100, this comes out to be 10 and you will get the 0.05. This is standard deviation of sample. Okay, now what is the standard deviation of sample is population is not known. ठीक है, आपके पास population की अगर standard deviation known नहीं है, we can estimate it from sample standard deviation. We can estimate it from sample standard deviation. क्यों? इसलिए कि अभी ये जो आपके पास 0.5 थी ना, तो आपके पास 0.5 सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन थी. हमने इसको यहाँ पे इसलिए पुट किया, हमारे पास जो सैम्पल साइज है वो लार्ज है. व्हेन वी सिलेक्ट अ लार्ज सैम्पल साइज दिस इज सपोज टू बी अ गुड एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन मीन. तो इसलिए हम इसको इसकी जगह पुट कर सकते हैं टू फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पल. ओके, हाउ मेनी स्टैंडर्ड डेविएशन. ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास हम क्या फाइंड करने जा रहे हैं, ये सारे डेटा से. हाउ मेनी स्टैंडर्ड डेविएशन दिस मीन फ्रॉम पॉपुलेशन मीन, ये आपको यहाँ से क्लियर होगा. अब हमने फाइंड ये करना है कि हमारे पास जो सैम्पल मीन आएगा, सैम्पल मीन आपके पास जो आता है वो पॉपुलेशन मीन कितना है 1.2 सेकेंड. तो आपके पास जो सैम्पल मीन की वैल्यू आएगी, हाउ मच फार अवे दिस इज लाइंग फ्रॉम पॉपुलेशन मीन से आपका जो सैम्पल मीन है वो कितना फार लाई करता है. ओके, फॉर दिस पर्पज यू आर गोइंग टू यूज जी स्कोर एंड जी स्कोर विल बी कैलकुलेटेड एज पहले भी आपने देखा था. जी स्कोर फॉर द कैलकुलेशन ऑफ जी स्कोर विल टेक द डिफरेंस ऑफ पॉपुलेशन मीन एंड दिस इज सैम्पल मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन. ये आपके पास जो है वो कितनी आएगी 0.05. सो यू विल गेट द जी वैल्यू ऑफ 3. So now if you look at this curve, you are seeing कि आपके पास 1.2 second this is indicating the population mean. You got the value 3. Z वैल्यू आपके पास कितनी आई है, आपके पास 3 आई है. मीन्स कि आपका जो सैम्पल मीन है वो पॉपुलेशन मीन से 3 स्टैंडर्ड डेविएशन फार लाई करता है. इस तरफ आपका ये लाई कर रहा है, ठीक है ना. ओके, फार लाई करता है. ओके, इस तरफ नहीं लाई कर रहा, बल्कि क्योंकि रिस्पांस टाइम आपके पास कम होता है तो ये आपके पास इस तरफ लाई करेगा आपके पास. अच्छा, एक और चीज़ अब आपकी ये है कि जो आपके पास ये टेस्ट होता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में भी हमने पढ़ा था कि उसकी जो 2 टाइप्स थी कि आपके पास 2 साइडेड भी होता है और एक आपके पास 1 साइडेड होता है. कुछ आपके पास स्टेटिस्टिक्स में 2 टर्म्स यूज़ होती हैं, 1 टेल्ड स्टेटिस्टिक्स एंड 2 टेल्ड स्टेटिस्टिक्स. अगर आपके पास पॉपुलेशन मीन जहाँ लाई कर रहा है और आपके पास ये चांसेस हों कि सैम्पल मीन पॉपुलेशन मीन के इस तरफ भी लाई कर सकता है, मतलब चांसेस हैं कि इस तरफ भी लाई कर सकता है और इस तरफ भी लाई कर सकता है, देन वी विल यूज़ द 2 टेल्ड स्टेटिस्टिक्स. और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये आपका जो शेडेड रीजन है, this is showing when we are 3 standard deviation away from the population mean, then this shaded region showing the 99.7% probability of finding the sample mean in this region. ठीक है, 99.5% 7% probability of finding the sample mean in this region, while we have to complete 100. So how much is left behind? 0.3% is left behind. So 0.3% probability of finding the sample mean will be in this region. Means कि आपको ये जो रेयर्स नज़र आ रही हैं इनमें 0.3% चांसेस होंगे. अब 0.3% टोटल है तो 0.3% को आप 2 पे डिवाइड करें
आपके पास 1.15% जो होगा दिस विल बी लाइंग ऑन दिस साइड of mean and 0.15% will be lying on this side of mean. So we can simply say that two-tailed statistics will be used when the chances of occurrence of sample mean are same on both sides of you can say mean. When the chances of occurrence of sample mean are on both sides of mean, whether on this and side पॉजिटिव वाली जो आपको नज़र आ रही है नेगेटिव साइड्स, तो आप टू टेल्ड टेस्ट यूज़ करेंगे. और टू टेल्ड टेस्ट के लिए आपको ये जो रीजन होता है इसकी परसेंट एंड इसकी परसेंट उन दोनों को ऐड करके फिर प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी होती है. उसके मुकाबले में अगर आपको ट्रेंड नोन हो, ट्रेंड नोन कैसे हो कि अगर आपको पता हो कि आपका जो जैसे लेट्स सपोज आप कहते हैं कि जो आपका सैम्पल मीन है उसकी वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन पॉपुलेशन मीन है, तो फिर आपको पता है कि सैम्पल मीन के जो अकरेंस के चांसेस होंगे विल बी ऑन वन साइड ओनली. हायर आपको पता है कि पॉपुलेशन मीन से अगर सैम्पल मीन की वैल्यू लो हायर है, सैम्पल मीन की वैल्यू हायर, तो इस साइड पे लाई करेगा. तो इंस्टेड ऑफ टू टेल्ड टेस्ट वी विल यूज़ ओनली वन टेल्ड टेस्ट. इन दैट केस आप क्या करेंगे, आपके लिए ये जो पूरा रीजन होगा, ये पूरा रीजन, ठीक है, ये पूरा रीजन जो आपके पास होगा दिस विल बी शोइंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइंग ऑफ सैम्पल मीन. और ये वाला आपका जो रीजन होगा दे विल बी ओनली 0.15% probability of lying of sample mean will be in this region only. The rest of the region जो आपके पास होगा that will be showing the probability of sample mean in this region, ठीक है. और ये आपके पास अच्छा उस केस में आप देखें, अब यहाँ पे आपके पास z वैल्यू जैसे है, z वैल्यू आपके पास 3 आ रही है, ठीक है. अब 3 आ रही है तो आपको मैंने कहा था जितनी ग्रेटर z वैल्यू होगी तो आपके पास प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कम होती जाएगी. तो आपके पास जो है प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कम है. अभी अपने उसी पे वापस जाते हैं, अपने जो हमारा z स्कोर आया था 3 स्टैंडर्ड डेविएशन अवे फ्रॉम द पॉपुलेशन मीन. और 3 स्टैंडर्ड डेविएशन अवे फ्रॉम द पॉपुलेशन मीन्स कि इसको आप कैसे कंक्लूड करेंगे, इसको अगर आप डेसिमल पॉइंट में एक्सप्रेस करेंगे तो आप इसको कहेंगे 3 आउट ऑफ 100 अगर आप करते हैं ना, 3% आपके पास है, 3 वैल्यूज़ की अगर आ रही है, सॉरी 0.3% है, तो 0.3% अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे दिस बिकम्स 0.00003. तो ये आपके पास जो है प्रोबेबिलिटी पी वैल्यू आपके पास आ रही है 0.003% प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइंग ऑफ सैम्पल मीन इन दिस रीजन. सो ये आपके पास हो गया जी. सिंस द probability value is lesser than the alpha value 0.005%, आप क्या करेंगे, in this case you will reject the null hypothesis and your alternative hypothesis will be accepted.